Good morning, student. This is the full class of trigonometry, and in the last classes we have discussed about trigonometry, formulas of trigonometry. We have discussed last time, right? And also how the formula formed. There are so many. This was a big list we had, and we had seen in the last classes of trigonometry, right? Sum of angle, difference of angle, right? Multiple formulas, sum multiple formula. This whole thing we have discussed. Earlier we have discussed the domain and range of trigonometric functions. Okay, so there was a one list in one block. If you remember, I just shown in the video, and I hope you all have to note down all these formulas and notes in your copy. And today in the fourth class, firstly I'll tell you, and in a short time we will spend on the graph of trigonometric functions and how the domain and range is concerned with the graph. If you learn the graph, it is very much possible you have learned the domain and range of trigonometric function. Okay, so here you see the domain, these are the inputs, range, these are this is the output of that particular function. Okay, so I'm not going upon all three on the last content of last three classes. I'm just being on this class, and today firstly I'll tell you about the graph of this trigonometric function, and after this we will start the question based on the earlier of the previous class, means the formula of trigonometric functions. Question we will do based on all these based on of all these formulas. So firstly I'll tell you about some graph of this trigonometric functions, how the graph is moving, where the sin x is 0, where the sin x is values were, right? We already have been know, and some few questions also we have discussed in the last class. Some 2 or 3 questions we have discussed last time. So today this is the graph of y is equal sin x. So you see very clearly is that the sin x is 0 when x is equal to n pi. N is integer, means sin x is 0 on pi, on 2 pi, on 3 pi. Sin pi is 0, sin 2 pi is 0, sin 3 pi is 0, right? Sin minus pi is 0, sin minus 2 pi is 0, minus sin minus 4 pi is 0, and so on. Means when the x is multiple of integer, which sign the value which gives you 0. So with that concern, I draw this figure, this graph here. You see it is 0, right? It is the x-axis, and I draw all the domains are here. Domains I have drawn. I have write on the x-axis. I've written on the x-axis. Okay, so it is pi, 2 pi, 3 pi. It is minus pi, minus 2 pi, minus 3 pi, and so on. Okay, so you see here sin 0 is 0, sin pi is 0, right? Sin 2 pi is 0, sin 3 pi is 0. You come to left side, it is minus pi 0, sin minus 2 pi 0, minus 3 pi 0, and so on. Okay, and this is the graph is going on, right? So in the this is plus 1. Okay, it is y-axis, it is plus 1, it is minus 1. So it cannot it cannot go beyond the 1 and minus 1. All the mountains, all the heights of mountains, and the amplitude of the graph only from 1 to minus 1, right? So this is the positive side, this is the negative side. Okay, so in the upside it's coming only, and it only can be come up to 1, right? And in the below side it only can be reached to minus 1, right? Minus 1 से 1 ये beyond नहीं कर सकता है, right? Because sin x का डोमेन मैंने क्या लिखा था, -1 to 1, ठीक है? तो ये -1 है, ये +1 है. और आप दो बात यहाँ नोटिस कर रहे हैं. पहली बात नोटिस आपने किया कि जो ग्राफ है ये -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है. हाइट देखिए ग्राफ की. एंड सेकेंड थिंग मैंने डिस्कस किया था, पाई, 2 पाई, 3 पाई जीरोस है. आपको यहाँ पर ये चीज आपको यहाँ पर दिख रही होगी. इस ग्राफ को आप अच्छे से ध्यान से करिए, ग्राफ आप लर्न कर ले. द बेटर थिंग इज दैट कि आप ग्राफ लर्न कर लें, ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है, राइट? मैंने यहाँ पर 3 ग्राफ ड्रॉ किए हैं. 3 ग्राफ अभी आपको और मिलेंगे, कॉट के, कोसेक एंड सेक. ये आपको एनसीईआरटी जो मैंने फाइल आपको सेंड करी है इसमें आपको मिल जाएगा. कम अपॉन द नेक्स्ट ग्राफ, इट इज y इज इक्वल cos x, राइट? अब cos x आपको पता है cos 90 is 0, cos 3 pi by 2 is 0, cos 5 pi by 2 is 0, cos 7 pi by 2 is 0. If you go in the left side, cos minus pi is 0, minus pi by 2 is 0, cos minus 5 pi by 2 is 0, cos minus 7 pi by 2 is 0, right? So you see here cos 90 is 0. देखिए जहां पर ये टर्न करेगा एक्स एक्सिस पर, वहां पर ग्राफ की वैल्यू 0 है, राइट? So you see cos 90 is 0,
cos 3 पाई बाई 2 is 0, cos 5 पाई बाई 2 0, cos 7 पाई बाई 2 0, लेफ्ट साइड आइए माइनस पाई बाई 2 0, माइनस 3 पाई बाई 2 0, माइनस 5 पाई बाई 2 0 एंड सो ऑन, राइट। और एक चीज आपको पता है cos 0 की वैल्यू 1 होती है, फिर cos पाई की वैल्यू 1 होगी, cos 2 पाई की वैल्यू 1 होगी। आप लेफ्ट साइड जाएंगे तो cos माइनस पाई की वैल्यू माइनस पाई होगी, राइट। एंड तो इसमें आप देखेंगे, यहां पर आप देखिए पाई की वैल्यू आपको 2 मिल रहा है, सॉरी वैल्यू आपकी ऑल्टरनेट चलेगी, पहले आपका 0 पे 1 है, फिर आप इधर आएंगे पाई पर -1 मिलेगा, फिर 2 पाई पे 1 मिलेगा, 3 पाई 1 मिलेगा। मींस ये जो आपको ग्राफ मिला है ना, तो इफ यू सेट द ग्राफ इन अ वेरी गुड वे, ग्राफ जो होगा ये आपको उस फंक्शन की कंप्लीट स्टडी कराएगा। अगर आपने ग्राफ स्टडी, मैंने 4th क्लास में ग्राफ इसलिए डिस्कस किया है कि मैंने पहले आपको सारी चीजें डिस्कस कर ली, डोमेन एंड रेंज बता दिया, ठीक है ना, फिर उसको अच्छे से समझा दिया कहां पर जीरो कहां पर जीरो नहीं है, कहां पर वैल्यू एक्सट्रीम वैल्यू पे जा रहा है, कहां पे लीस्ट वैल्यू पे आ रहा है एंड सो ऑन, मैंने सब डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे आप ग्राफर लेकर आया, तो मैंने ग्राफर आपको क्लियरली बहुत इजी ग्राफ है, आप ग्राफ समझिए, ग्राफ कैसे ग्राफ चल रहा है, कहां पर क्या वैल्यू हो रही है, आप उन वैल्यूज को ग्राफिकली करिए, तब आपको ग्राफ अच्छे से इन अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव वे आपको ये समझ में आएगा। सो यू सी cos 90 0, cos 3 पाई बाई 2 0, cos 5 पाई 2 0, लेफ्ट पे आइए माइनस में 0 मिल रहा है, ठीक है ना, cos 0 1, cos पाई -1, cos 2 पाई 1, cos 3 पाई -1 एंड ऑल्टरनेट चलेगा। अब इधर आइए cos माइनस पाई -1, cos -2 पाई +1 एंड सो, अगर आप इधर आए, इधर आ जाए तो फिर आपको यहां ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। अब ये ग्राफ आपका यहां से यहां तक आएगा, फिर आप देखेंगे cos माइनस पाई है, ध्यान दीजिएगा यहां पर इट इज -3 पाई, cos पाई -1 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहां पर आपको ये अंडरस्टैंडिंग मिल रही है। एक और अंडरस्टैंडिंग आप यहां से देखिए, यहां पर पाई 3 पाई 5 पाई एंड सो ऑन, यहां पर वैल्यू आपको 1 मिल रही है, ठीक है, और 2 पाई +1, 4 पाई फिर +1 मिलेगा एंड सो ऑन। इधर आप आइए, लेफ्ट साइड उल्टा मिलेगा माइनस पाई -1, फिर इसके बाद आप -2 पाई +1, फिर -4 पाई +1, ठीक है ना, -पाई -1, -3 पाई -1 एंड सो ऑन। तो ऑड पर नेगेटिव मिल रहा है और इवन पर पॉजिटिव मिल रहा है। तो ये सब ऑब्जर्वेशन है ग्राफ के। The most important thing is graph here in trigonometry. You have to understand the figure in a very good way. मतलब आपको एक सिंगल डॉट भी स्टडी होना चाहिए कि ग्राफ कैसे चल रहे हैं, कैसे वैल्यूज आ रही हैं, क्या इसकी ऑब्जर्वेशन है। कंक्लूजन आपको बोलते हैं ना, कंक्लूजन ये इस कंप्लीट, आप ऐसा लिखते हैं ना, आप लास्ट में लिखते हैं कंक्लूजन, किसी भी नोट का आप लास्ट में देते हैं कंक्लूजन। तो कंक्लूजन इस पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक ग्राफ है। तो कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, आपको इसे कंक्लूड करना है एट वन पॉइंट, राइट, और इसको लर्न करना है, तब आपको ग्राफ लर्न होगा। कम अपॉन द थर्ड पार्ट, ये है आपका y इज इक्वल tan x, राइट। मैंने यहां पर लिखा है रेंज इज ऑल रियल नंबर, मींस ऑल रियल नंबर, माइनस साइन एंड कॉस। मैंने आपको क्या बताया कि इफ यू टेकिंग एनी एंगल इन साइन एंड कॉस, द वैल्यू always lie between -1 to 1, right? If you come in tan x, here we cannot take any value in tan x. What is the domain of this domain of tan? All real number except 2n plus 1 pi by 2, means on 90 3 pi by 2, 5 pi by 2, 7 pi by 2, -90, -3 pi by 2, -5 pi by 2, -7 pi by 2, on all these values that tan is infinity. तो देखिए मैंने आपको लाइंस ड्रॉ करी है, मैंने 90 पर डॉट लाइन ड्रॉ करी है, मैंने 3 by 2 डॉट लाइन ड्रॉ की है, राइट। आप इधर आइए, मैंने -5 by 2 पर लाइन ड्रॉ की है, फिर -3 by 2 पर लाइन ड्रॉ की है एंड सो ऑन। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि देखिए जो ग्राफ चल रहा था, ये ग्राफ आपको हर एक पॉइंट पर वैल्यू दे रहा है, मतलब 0 से लेकर, बहुत ध्यान सुनिएगा, 0 से लेकर 90 तक में, 90 इंक्लूड नहीं, 90 जस्ट पहले, ये आपको एक रियल वैल्यू दे रहा है। और ये ग्राफ कहां तक जा रहा है? ये ग्राफ जा रहा है अप टू प्लस इन्फिनिटी, यहां पर ग्राफ जा रहा है माइनस इन्फिनिटी। तो इसका रेंज हो गया ऑल रियल नंबर, राइट। बट आपने क्या देखा, 90 पर आपको डॉट मिल रहा है, तो आपने 90 पर लाइन ड्रॉ किया, 90 पर देखिए ये ग्राफ 90 पर टच कर रहा है, ये ग्राफ 90 पर टच कर रहा है, दोनों ग्राफ में मैंने आपको ब्लैक लाइन ड्रॉ करी है, ब्लैक डॉट लाइन ड्रॉ करी है। इसका मतलब ये है कि टाइम 90 पर आपको वैल्यू मिलेगा इन्फिनिटी, इसका ये साइन है, राइट। आप यहां पर आइए,
साइन tan 3π/2 वैल्यू आपको मिलेगा इंफिनिटी। अब इधर आइए, तो tan -90 आपको डॉटेड लाइन दिख रही है कि जो रेड लाइन है इसको टच नहीं कर रही है, राइट। मतलब वैल्यू जो है वो लाइन के क्लोज टू बट मिलेगी नहीं, क्योंकि वहां पर आपको वैल्यू मिली इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड वैल्यू में कोई भी आपको वैल्यू इसमें नहीं मिल रही है। तो आप इसमें आपने डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया है कि ये आपको पोजीशंस, ये हमने बनाई है पोजीशंस कि कहां पर tan की वैल्यू आपको मिल रही है इंफिनिटी। लिसन वेरी केयरफुली, हमारे वर्ड हमारे वीडियोस आप रिपीट करके देखिएगा, तब आपको एक बार में चीज अंडरस्टैंड नहीं होगा। पहले आप बुक स्टडी करिएगा, फिर हमारा वीडियो देखिएगा, उसके बाद फिर आप इस कंटेंट को, फिर आप जो मैंने आपको टेक्स्ट सेंड किया है वो आप स्टडी करिएगा, तो आपको अंडरस्टैंड होगा कि क्या चल रहा है यहाँ पर, व्हाट्स गोइंग ऑन, कैसे ये ग्राफ ड्रॉ हो रहा है। जो मैंने डोमेन और रेंज का आपको टेबल दिया था उसके इससे क्या मीनिंग हो आप यहाँ पर इसको अंडरस्टैंड करेंगे वेरी क्लियरली, राइट। तो आप देख रहे हैं कि जो मैंने आपको रिटर्न में दिया था सिमिलरली वो आपका ग्राफ में भी चल रहा है कि रेंज आपका रियल नंबर, डोमेन क्या है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2n+1 मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये आपका डोमेन होता है, वाई है ये आपका, ये रेंज की वैल्यूज होती है। तो देख रहे हैं आपने 1 2 3 मैंने सब ड्रॉ किया ना, 1 2 -1 -2 -3 एंड सो, ठीक है। अब आप देखिए मैंने सबको एक साथ इसलिए बनाया कि आप कंपेयर कर सकें कि इसकी वैल्यू 1 से -1 के बीच में, इसकी वैल्यू -1 से -1 के बीच में, पर इसकी वैल्यू जल्दी चली जा रही है क्योंकि इसका रेंज क्या है, ऑल रियल नंबर है, और इसका रेंज क्या है 1 से -1 है, कॉस का रेंज क्या है -1 से 1 के बीच में। तो ग्राफ आपका स्टिक है, ग्राफ एक लिमिटेड लाइन में चल रहा है, बट इसका ग्राफ देखिए चलता चला जा रहा है, उधर जा रहा है वाई की तरफ, उधर जा रहा है वाई की तरफ, राइट। वाई के बोथ साइड आपका जो है ग्राफ आपका जो है एक्सटेंड कर रहा है क्योंकि इसका रेंज ऑल रियल नंबर है, राइट। तो ये ग्राफ की क्लास, अब इस ग्राफ के डिस्कशन के बाद मैंने यहाँ ग्राफ डिस्कस किया, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन कराने जा रहे हैं आपको। पहले हम हर एक टाइप के क्वेश्चन कराएंगे, पहला मेरा डिस्कशन है मैं डोमेन और रेंज पर आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, राइट। तो मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिया है, मैं ग्राफ को इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए अब इसमें आपको यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने दो क्वेश्चन लिया, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया y इज इक्वल 1 + 3 cos 2x, राइट। ये क्वेश्चन है आपका, इसका आपको इसमें रेंज फाइंड करना है। तो आप इसमें रेंज फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है ना, फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल 1 + 3 cos 2x, ओके। अब इसके लिए आपको ध्यान ही करना है कि देखिए आपको मैं दो बातें बता देता हूं। पहला है आप देखिए साइन, आप नोट कर लीजिएगा, साइन ax + b, ये इसकी वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में होगी, साइन x हो या ax + b हो। सिमिलरली और आपका cos ax + b है, राइट, इसकी वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में लाई करेगी, राइट। अब इसमें आपका साइन 2x है, इन दो पॉइंट्स को आप पहले नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। इसको नोट करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है cos 2x, अब cos 2x की वैल्यू 1 से -1 के बीच में लाई करेगी। पहले आप इसको ऐसे लिखिए, ठीक है, cos 2x लाइन बिटवीन -1 to 1, ये क्या है आपका 3 है ना, 3 इसके मल्टीपल में है, तो आप 3 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करिए। क्यों करिए, क्योंकि आपके यहां आपको लाना है 3, तो आपने 3 मल्टीप्लाई किया, 3 cos 2x एंड यहां पर 3 आ जाएगा, फिर यहां पर 1 प्लस में है यहां पर, तो आप पूरी इन इक्वेशन में इनइक्वालिटी है, आपको इसमें 1 ऐड करना है क्योंकि आपको यहां पर लाना है 1 + 3 cos 2x, राइट। आपने यहां पर ऐड किया, यहां पर 1 आपने ऐड किया, जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी आप करेंगे वो तीनों साइड्स में करेंगे, राइट, लेफ्ट में करेंगे, मिड में करेंगे एंड राइट में करेंगे, cos 2x और ये आपको हो जाएगा 3 + 1, ठीक है। तो ये आपका हो गया -2 1 + 3 cos 2x और ये आपका हो गया 4, राइट। तो आपने देखा ये पूरा आपको y फॉर्म हो गया, या y दिया था y यहां पर आ गया, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं हम -2 y एंड 4, तो y की वैल्यू कहां से कहां पर है, y की वैल्यू -2 से 4 पर है। अब अगर आप इस फिगर को, अगर आप इस ग्राफ को
यहां पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो एक्सट्रीम पे ये 4 तक जाएगा और मतलब अप साइड एंड डाउन साइड ये -2 तक आएगा, ठीक है। तो इसका रेंज क्या हो गया, इसका रेंज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी आपका रिक्वायर्ड आंसर है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -2 to 4 क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहां पर इक्वल बना हुआ है, तो ये आपका रेंज हो गया -2 से 4 तक, -2 एंड 4 भी इंक्लूड है, राइट। इस क्वेश्चन को आपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब मैं जा रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए। क्वेश्चन है, मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, उसमें एक नया चीज आपको पहले मुझे एक्सप्लेन करना है। देखिए, एक जो नया एक्सप्लेनेशन है वो ये है, यहां से देखिए, यहां पर जैसे कि sin x हो तो इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई कर रही है, या मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि अगर sin ax प्लस b हो इसकी वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में लाई करेगी, राइट। अच्छा, अब अगर sin स्क्वायर x हो तो आप क्या करेंगे, sin स्क्वायर और cos स्क्वायर दोनों के लिए चीजें सेम रहेगी। तो आपने अगर लिखा sin स्क्वायर x, अब इसकी वैल्यू -1 से 0 के बीच में रहेगा, ठीक है, मतलब इसका जो रेंज है वो 0 से 1 के बीच में आ जाएगा, 0 से ये बियॉन्ड नहीं जाएगा, क्योंकि ये इवन फंक्शन आ गया। इवन फंक्शन की वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, 0 और पॉजिटिव रहेगी। तो अब sin स्क्वायर की वैल्यू आपकी -1 से 1 के बीच में होगी। सिमिलरली आप इस बात को नोट कर लीजिएगा, ये बात बुक में मेंशन नहीं है, इवन रेफरेंस बुक में मेंशन नहीं है, मैं खुद अपने नोट्स दे रहा हूं आपको, ये नोट्स में आप इसको आप नोट कर लीजिएगा हमारे वीडियोस पॉज करके। अब यहां पर आपने लिखा sin स्क्वायर ax प्लस b है अगर, तो इसकी वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। सिमिलरली cos में देखिए, cos स्क्वायर x है अगर, इसकी वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। अगर यहां पर लिखा हुआ है ax प्लस b, cos स्क्वायर x प्लस b, उसकी वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। ये आपको अंडरस्टैंड हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन पर आ जाइए। अब आपका क्वेश्चन जो है, अब हमको फाइंड करना है, फाइंड द डोमेन। अब हम एक और क्वेश्चन यहां पर ले रहे हैं, दिस क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन इज 3 sin स्क्वायर x -2 cos स्क्वायर x प्लस sin, राइट। पहले आप इसमें यूज करिए आइडेंटिटी, आप पहले आइडेंटिटी यूज करके cos स्क्वायर को sin स्क्वायर में चेंज कर लीजिए। कौन सा आइडेंटिटी, sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है इज इक्वल टू 1, ठीक है, या sin स्क्वायर को cos स्क्वायर में आप चेंज कर लीजिए, दो ऑप्शन है। तो सिंपली हमने यूज किया cos स्क्वायर x, हमको पता है सिंस प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है, राइट। अब आप इसने लिखा आपने 3 sin स्क्वायर -2 1 माइनस sin स्क्वायर x प्लस 9, ठीक है। अब आपने पूरी इक्वेशन को पहले sin स्क्वायर में चेंज कर लिया, यह आपका हो गया 3 sin स्क्वायर x -2 प्लस 2 sin स्क्वायर x प्लस 9, राइट। आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपको मिले लाइक टर्म, ये हो जाएंगे 5 sin स्क्वायर x एंड प्लस 7, ये आपको क्या मिल गया, ये y की वैल्यू आ गया, मतलब आपने इस y प्लस 5 में चेंज कर लिया। अब इसके बाद देखिए आपको क्या पता है, एज वी नो sin स्क्वायर इज लाइन बिटवीन 0 to 1, ठीक है। अब आप यहां लिखेंगे एज वी नो, या सिंस करके आप लिख लें sin स्क्वायर आप इसके बाद यहां पर आ जाइए, sin स्क्वायर लाइन बिटवीन 0 to 1, ओके। अब यहां पर क्वेश्चन क्या है, यहां पर है 5 into 5 sin स्क्वायर के मल्टीपल में है, मींस आपको अब इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 5 0 0, ओके, एंड 5 into sin स्क्वायर 5 sin स्क्वायर x एंड 5 1 5, ओके। मैंने 5 को पूरी इनइक्वालिटी से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट आप देखिए यहां पर प्लस 7 है, अब आपने यहां प्लस 7 किया तीनों पार्ट में, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, तो 7 प्लस 0 7, यह आपका हो जाएगा 7 प्लस 5 sin स्क्वायर x एंड 5 प्लस 7 मीन्स हो जाएगा ये 12, तो ये आपका 7 आ गया, ये आपका हो जाएगा 7 प्लस 5 sin स्क्वायर x एंड 12, राइट। तो ये आपको क्या मिला, y मिल रहा है आपको, y मिल गया, तो आपका हो गया 7 y एंड 12, मींस अब इसका रेंज क्या आ गया, इसका रेंज आपका आ गया 7 to 12, ये आपका आंसर आ गया, राइट। तो मैंने देखिए आपको यहाँ पर स्क्वायर में लेकर आया, और एक आपको जहां पर स्क्वायर नहीं था 1 प्लस 3 cos 2x, एक मैंने क्वेश्चन आपको ये कराया, ठीक है।
अब मैं आपको इस पर बेस्ड असाइनमेंट दूंगा जिसको आपको करना है, राइट। अच्छा, तो अब इसके बाद हम अपने फॉर्मूले वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्लास मैंने अभी क्वेश्चन लिया है यहाँ पर, जैसे कि आपको प्रूव दैट एक प्रॉब्लम है sin n+1x n+2x cos n+1x cos n+2x एंड आपको प्रूव करना है इज इक्वल टू sin x लाना है, राइट। अब इसका सिंपल वे क्या है, आप ध्यान दीजिए। ये एक आपको मिल रहा है फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा है? मैंने आपको फॉर्मूला दिया था cos a प्लस बी। cos a प्लस बी फॉर्मूला क्या है? cos a cos b माइनस sin a sin b एंड cos a माइनस b क्या होता है? cos a cos b प्लस sin a sin b। तो आप ध्यान दीजिए, ये आपको मिलेगा cos a, ये आपको मिलेगा cos b, टैली करिए, एंड दिस इज sin a एंड दिस इज sin b, राइट। मैंने LHS लिया, LHS लेके मैंने सेम क्वेश्चन यहाँ पर कॉपी किया, ठीक है। अभी आपको हो गया cos a cos b प्लस sin a sin b। फॉर्मूला क्या मिलेगा? cos a माइनस b, राइट। तो आप यहां लिखेंगे cos a माइनस b। a क्या है? a आपका है n+1 इंटू x, ये आपका a है। यहां लिखिए आप n+1 इंटू x, ये आपने a लिखा, एंड a माइनस b क्या है? n+2x, राइट। अच्छा, अब सॉल्व करिए इसको, ये आपका हो जाएगा cos nx, ये आपको मिलेगा प्लस x एंड माइनस nx एंड दिस इज cos a cos b sin x, ये आपको हो जाएगा -2x, ओके। ये आपको हो जाएगा sin nx कैंसिल माइनस x, ठीक है। cos माइनस x, सॉरी cos x है, इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन रॉन्ग था ये, आपको cos से लेकर आना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आया cos माइनस x और ये हो जाएगा cos x, ठीक है ना। दिस इज द आंसर, ठीक है ना। प्लस मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया है cos 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस, आपको प्रूफ करना है -2 sin x, आपको इसको लाना है। अब इसे करने के दो आइडियाज हैं। पहला आइडिया आपके माइंड में ये आया होगा कि यहाँ पर आप cos a प्लस b cos a माइनस b अप्लाई कर दें, ठीक है। फिर cos a प्लस b को अलग सॉल्व करें, cos a माइनस b को अलग सॉल्व करें, क्योंकि आप cos 3π/4 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। cos 3/4 कितना होता है? 3π/4 आपका हो जाएगा एंगल 135, राइट। देखिए 45 है, 45 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 135 आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे इसकी मीनिंग होती है, ऐसे इसको इवैल्यूएट किया जाता है। तो ये अब आपको इसको इवैल्यूएट करना है। अब इसमें एक फॉर्मूला और है जो मैंने आपसे डिस्कस किया, तो वो ये था cos a plus b minus cos a minus b, if you remember. So I am writing that formula here. Cos a plus b minus cos a minus b, फॉर्मूला क्या था? -2 sin a sin b, राइट। ये फॉर्मूला था ना। अब इसमें आप टैली करें इस फॉर्मूले को और ये इसकी वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी, राइट। तो हम लिखेंगे माइनस, ये फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूं, -2 sin a क्या है? a इज दिस, ये आपका सॉरी ये आपका a है और ये b है, ठीक है ना। 3π/4 a है और b आपका x है, राइट। देखिए क्लास 11, एक बात आपको ध्यान रखना है कि क्लास 11 में जो आप स्टडी कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको स्लो मोशन में स्टडी करना है। पहले आपको चीजों को अंडरस्टैंड कर लेना है, थोड़ा टाइम देकर आपको अपने स्टडी से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको एक अपना शेड्यूल ड्रॉ करना है कि आप डे में, देखिए जैसे कि कोविड-19 से हम पूरा इवन कंट्री ना कहें बल्कि पूरा ग्लोब इससे फाइट कर रहा है। कोविड-19 से हम लोग थोड़ा प्रॉब्लम में आ गए, हमारा वर्किंग स्टाइल चेंज हो गया है, हमारे रिसोर्सेज यहाँ थोड़ा सा लिमिटेड हैं, थोड़ा सा आपको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास रिसोर्स है वो भी लिमिटेड है। बट हम ट्राई कर रहे हैं कि आपको कंप्लीट स्टडी, कंप्लीट नॉलेज हम आप तक पहुंचाएं, राइट, और आप उसको अंडरस्टैंड करें। बट मेन रोल इसमें आपका है कि आप इन हमारे वीडियोस को कितने अच्छे से देखते हैं, आप इसमें कितना टाइम देते हैं, राइट। थोड़ा सा आप टाइम मैनेज करें, टाइम मैनेज करके आप कुछ टाइम निकालें मॉर्निंग के लिए, कुछ टाइम निकालें आप इवनिंग के लिए, राइट, अलॉन्ग विद योर एक्सरसाइज। जो यूट्यूब पे जो आपकी न्यूज़पेपर में जो एक्सरसाइज आ रही हैं, जो आप डोमेस्टिक वे में कर सकते हैं, थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन यहाँ पर स्टॉप किया है, तो आप उन एक्सरसाइज को भी करें, ठीक है। तो और आपको अपने को स्ट्रांग रखना है फिजिकली,
मेंटली, इमोशनली, ठीक है ना, 3 वेज से। देखिए एक्चुअली क्या होता है, जब हम कहीं पर बाउंड हो जाते हैं तो हमारे 3 वेज यहाँ पर हम मेंटली हो सकता है वीक हो जाए, हम फिजिकली, हम इमोशनली, तो हमको ऑल 3 वेज, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हमें स्ट्रांग रहना है, ठीक है ना। हमें अपने को फ्रेश रखना है, अपने ब्रेन को ऑलवेज भी फ्रेश रखना है। और जो हमारा टाइम है, हमारा टाइम शेड्यूल है कि हम मॉर्निंग में क्या, हम थोड़ा सा टाइम निकालें हम, और एंड वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली, हमको अर्ली राइजर बनना है, राइट। हाँ, ठीक है ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइट, मेक सम हेल्थी वेल्थी एंड वाइज, ये जो कोट बोला जाता है। तो अभी हम ये ना समझे कि नहीं हमको अर्ली ही सोना है, अर्ली ही उठना है, राइट। हम टाइम से ही अपना वर्क करें। हम ये समझें कि हमारा मॉर्निंग में स्कूल जो हमको टाइम शेड्यूल, टाइम टेबल आपके स्कूल से आपको दिया गया है, हम उसको ही फॉलो करें, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आप टाइम निकालें। पहले आप जो पीडीएफ फाइल आपको सेंड करी गई मैथमेटिक्स में, आप थोड़ा सा उसको सर्च करें, थोड़ा सा आप, और आपको जो एप्लीकेशन दिया गया है उसमें से कुछ चीजें आप और स्टडी कर लें, नेक्स्ट थोड़ा सा आप और उसको देख लें। और जो हमारे वीडियोस हैं, हम इन वीडियोस में पहले हमने सब चीजें आपको टाइम स्टेप टू स्टेप आपको मैंने एक्सप्लेन करने की ट्राई किया, राइट। तो ये हमारा मैसेज था आपको, ठीक है ना। बी हेल्थी, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, ठीक है ना। आप हेल्थी रहें, ठीक है ना, एंड डू सम एक्सरसाइज, ओके, एंड टेक प्रॉपर स्लीप, ओके, एंड सो कम फॉर द क्वेश्चंस, हम क्वेश्चन पर आ जाएं। एंड फाइनली एंड श्योरली वी विल विन, ठीक है। इट इज अ फाइट between the globe and the COVID-19, and possibly and very much possibly, and we will win, right. And this fight we will win, okay. So here come for the question. तो यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन था आपका, तो -2 sin a sin b था। अब इसके लिए आपने a देखा 3 पाई बाय 4 था, b आपका x था। अब आपने सिंपली a की प्लेस पे प्लेस किया 3 पाई बाय 4, एंड आपने x पे प्लेस किया sin x, ओके। अब हम इसको सॉल्व कर लें, हमारा वैल्यू हो गया, ठीक है ना। मैंने आपसे क्या बताया था, आपको याद होगा, अगर 3 है 4 एक कम होता है तो क्या करते हैं, पाई माइनस पाई बाय 4, मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसको एक्सप्लेन किया था, इट इज sin x, ओके। अच्छा, अब देखिए -2 sin, अभी क्या होगा, पाई है तो रेशियो आपका सेम रहेगा, पाई माइनस थीटा, इट इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा sin माइनस पाई माइनस x sin x, सो इट इज sin पाई बाय 4 एंड sin x, ओके। अच्छा, अब इसको आप सॉल्व करें, -2 sin पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 into sin x, ओके, एंड 2/√2 आपको √2 मिलेगा, सो इट इज -√2 sin x and is equal to RHS, right? This is the answer. And you do it again after my solution, okay? क्लास ये क्वेश्चन देखिए, sin स्क्वायर 6x minus 4 sin स्क्वायर 4x is equal to sin 2x, आपको sin 2x sin 10x आपको लाना, राइट। ये एक फॉर्मूला भी है क्लास, ठीक है, ये एक फॉर्मूला है ये फॉर्मूला मैं आपको बाद में ड्राइव करूंगा, पहले इस क्वेश्चन देखिए कैसे होगा। आपने LHS लिया, आपने देखिए 6x को आप ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर यहां लगा हुआ है, मैं बहुत सिंपल वे में करा रहा हूं आपको, जो आपकी 10th की नॉलेज है उसको पूरा कंप्लीटली यूज करिए। ये आपका हुआ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अब ये sin 6x का होल स्क्वायर sin 4x का होल स्क्वायर, अब यहां लिखेंगे आप a प्लस b a माइनस b, राइट, a प्लस b a माइनस b, ओके। एंड आफ्टर दिस अब मैं यहाँ पर दो फॉर्मूले यूज करूंगा, एक फॉर्मूला यहाँ यूज करूंगा, फॉर्मूला यहाँ यूज करूंगा, ये आपका होगा sin c प्लस sin d, राइट। मैं दोनों फॉर्मूले यहाँ पर लिखता हूं, आप ध्यान दीजिए, आप एग्जाम में जब इस क्वेश्चन करेंगे तो फॉर्मूला भी स्टेट करेंगे। ये होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 एंड cos c माइनस d बाई 2, राइट, एंड sin c माइनस sin d, दोनों फॉर्मूले यहाँ पर यूज होंगे 1 बाय 1, 2 sin 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2, राइट। ये दोनों फॉर्मूले आप इस ब्रैकेट में अप्लाई करिए तो आपको मिलेगा 2 sin 6x प्लस 4x डिवाइड बाई 2 cos 6x माइनस 4x डिवाइड बाई 2, राइट। आप ट्राई करिएगा जब ये एंगल पॉजिटिव में होगा तो जो एंगल ग्रेटर होगा उसको आप पहले रख लीजिएगा, स्मॉलर वाले को बाद में रखिएगा, ठीक है।
अगर आप बाद में कर लेंगे तो गलत नहीं होगा, कैलकुलेशन से वैल्यू सही आ जाएगी, बट ये एक कन्वीनियंट होता है। ये सब पॉइंट हमारे बहुत ध्यान रखिएगा जो मैं आपको क्वेश्चन के बीच में बताता हूँ। cos sin c माइनस sin d, ये आपका हो जाएगा 2 cos, फॉर्मूला है, फॉर्मूला टैली करिए यहाँ पर, आप लोग फॉर्मूला टैली करके बताइए, यहाँ पर आप ट्राई करिए। 6x प्लस 4x डिवाइड बाई 2, यहाँ पर ये c है और ये d है, राइट, एंड साइन 6x माइनस 4x डिवाइड बाय 2, राइट। अब इसको सॉल्व करिए, 2 देखिए 6 प्लस 4 10, 10 अपॉन 2 5, तो यहां पर आ जाएगा 2 साइन 5x, ओके, 6x माइनस 4x 2x, 2x अपॉन 2 1x, तो यहां पर आ जाएगा cos x, ओके। इस ब्रैकेट को आप सॉल्व करिए, ये आपका होगा 2 cos 5x एंड sin x, ओके। अब यहां पर आप क्या करें, यहां आप इसको लिखिए 2 sin 5x cos 5x एंड 2 sin x एंड cos x, ओके। मैंने क्या किया, 5 वाले टर्म को वन साइड लिया, cos वाले टर्म को वन साइड किया, ये आप क्या हो गया। अब देखिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, 2 sin a cos a, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, सिंस sin 2a आपका होता है 2 sin a cos a, ओके, ये फॉर्मूला है। अब यहां देखिए 2 sin a cos a, इट बिकम sin 2a, sin 2a, 2a मतलब 2 इंटू 5x, सेम फॉर्मूला यहां अप्लाई होगा, ये आपको हो जाएगा sin 2x, ओके। तो ये आपका हो गया sin 10x एंड ये हो गया आपका sin 2x, इट इज हेंस प्रूफ, नाउ इट इज इक्वल टू RHS एंड हेंस प्रूव्ड, क्वेश्चन ओवर।